वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं वेव का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर जेई मेन में आए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय वाई इक्वल टू 2 cos 2 पाई 300t माइनस एक्स मीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव आपको बताना है। वी नो दैट जो इक्वेशन होता है वेव का, दिस इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, दिस इज कॉस एंड ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो इफ यू आर कंपेयरिंग विथ दिस इक्वेशन नाउ, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ए जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड इजकल टू 2, सो एम्पलीट्यूड इजकल टू 2 एंड ओमेगा टी, तो ओमेगा इजकल टू कितना है यहाँ पे, तो 2 पाई को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2 कॉस एंड दिस इजकल टू 330 इंटू 2 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स मीटर। सो ओमेगा इजकल टू कितना है यहाँ पे, सो दिस इजकल टू 330 इंटू 2 पाई एंड के की वैल्यू कितनी है, के इजकल टू दिस इजकल टू 2 पाई। सो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा इजकल टू, वी नो दैट ओमेगा इजकल टू दिस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो दिस इजकल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इजकल टू 330 इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी इजकल टू 330 हर्ट्ज एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। Now next question. The equation of wave is given by y is equal to 10 power minus 2 sin 2 pi 160t minus 0.5 x plus pi by 4, where x and y are in meters and t in second. The speed of the wave is किलोमीटर पर आवर इज। सो इसमें फिर से अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन को, तो अगर यहाँ से हम देखें तो ओमेगा इजकल टू कितना है यहाँ पे, तो ओमेगा इजकल टू दिस इजकल टू साइन 2 पाई ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। सो ओमेगा अगर हम देखें यहाँ पे तो ओमेगा इजकल टू दिस इजकल टू 160। सो क्वेश्चन नंबर 3 में है ओमेगा एंड ओमेगा इजकल टू दिस इजकल टू 160 एंड अगर हम कंपेयर करें के, तो के इजकल टू कितना है, दिस इज 0.5, के इजकल टू 0.5। सो वेव स्पीड ऑफ वेव, so the formula of a speed of wave is equal to v is equal to this is omega upon k, so this is equal to 160 upon 0.5, so this is equal to 1 meter per second. So if you are converting meter per second into kilometer per hour, so now we can write 160 upon 0.5 into this is 18 upon 5, so this is equal to 111152, this is kilometer per hour. This is the correct answer. Now question number 4, a transverse harmonic wave on a string is given by yxt is equal to 5 sin 6t plus 0.003x, where x and y are in centimeter and t in second. The wave velocity is, again we can find wave velocity. Now if you are comparing with the standard equation, now question number 4, if you are comparing with the standard equation, so this is equal to yxt is equal to this is a sine this is omega t and plus kx. So what is omega? So if you are comparing with this equation, from this equation, so omega is equal to this is equal to 6 radian per second and what is k, so k equal to this is equal to 0.003 centimeter inverse. So what is wave velocity? So wave velocity v is equal to omega upon k, so this is equal to 6 upon 0.003 into, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, so this is equal to 10 to power 2, so this is equal to 20 meter per second. This is the correct answer. Now next question. Two open organ pipes of length 60 cm and 90 cm resonates at 6th and 5th harmonic respectively. The difference of frequencies for the given mode is, velocity of sound in air is 333 meter per second.
So the difference in frequency in the open organ pipe is given by, the formula is frequency nu is equal to, this is n into v upon this is 2l. This is the relation. So change in frequency is, so this is change in frequency is equal to, this is f1 minus this is f2. So this is the frequency nv upon 2l. This is a in general frequency nv upon 2l. So difference in frequency is equal to f1 minus f2. So this is equal to n1v upon this is 2l1 minus this is n2v upon this is 2l2. So this is equal to change in frequency, difference in frequency is equal to, this is equal to 6v upon, क्योंकि यहाँ पे बोला है आपको कि 6th and 5th हार्मोनिक, सो दिस इज 6v अपॉन 2 इंटू 0.6 माइनस 5v अपॉन 2 इंटू 0.9, क्योंकि 60 सेंटीमीटर है तो 0.6 हो गया, 90 सेंटीमीटर है तो 0.9 हो गया। वैल्यू हमने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। जब इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ से, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, दिस इज v/2 इज द कॉमन and this is 6 upon 0.6 minus 5 upon 0.9. So this is equal to, change in frequency is equal to v/2 और into यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 60 upon 6 minus 50 upon 9. So this is equal to 10. So this is equal to change in difference in frequency, v is equal to आपको गिवन है 333 divided by 2 into this is 9 is the LCM, so 90 minus 50. So this is equal to, difference in frequency is equal to 333 upon 2 into this is 40 upon 9. So this is equal to 20, and if you are calculating this, so this is equal to, we get 740 hertz. So 740 hertz is the correct answer. तो इसमें बहुत सारे जो आपके फार्मूला है, जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, जो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2L √T/m होता है। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है v/4L होता है। अब उसमें बढ़ाते चले जाइए आप, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड। ओपन जो ऑर्गन पाइप होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी जो v/12 होती है। इसी में फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, इसमें चेंज करते चले जाइए आप। तो इस तरह से ये सारी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये सारे और इसका जो इक्वेशंस होते हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया है, ये सब इक्वेशन वगैरह आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके क्या होते हैं, और इसे कंपेयर करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और असाइनमेंट में हमने भी दिया है इसमें कि बड़े सारे क्वेश्चन इसके कंपेयरिंग से आता है। जैसे ओमेगा कंपेयर करके ओमेगा निकालना, के निकालना, फिर वहाँ से वेव वेलोसिटी निकालना, कहीं पे आपसे फ्रीक्वेंसी निकलवाएगा, कहीं पे आपको टाइम पीरियड निकलवाएगा। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये सारे फार्मूले जो हैं हमने आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमने भेजा है उसमें सारे फार्मूले लिखे हुए हैं आपके।